हमारी शक्ल भी आती है उसमें। हाँ बिल्कुल। चलो शुरू हो गया है। प्लीज जॉइन योर हैंड्स, विल बी स्टार्टिंग आवर क्लास। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, chant omkaram thrice. Sairam students. Now, our second chapter is on the trail of the earliest people. Okay, on the trail of the earliest people means कि वो जो आदि मानव थे उनके पद चिन्ह या फुटप्रिंट्स या ट्रेसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उन्होंने घूमा। ओके, सो ट्रेल मतलब ट्रेसेस, फुटप्रिंट्स या उनकी जो निशान है वो कहाँ कहाँ पर हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि आदि मानव कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। सो all these things will be studying in this chapter. So be very careful. I am presenting my screen now. ठीक है, आपकी बुक का पूरा चैप्टर मैंने पीपीटी के द्वारा शो करने की कोशिश की है। ट्राई टू फाइंड इट आउट कि आपको समझ में आया कि नहीं, एंड लेटर ऑन विल आस्क क्वेश्चंस। आप अपनी क्वेरीज लिख भी सकते हैं। ओके, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। Can you see my screen? Vedansh, can you respond me? Can you give me response? Yes, ma'am. Okay. This is our second chapter on the trail of the earliest people. Now, the earliest people, who were they? They were hunter-gatherers. In the first chapter, we have read about a little bit about this. Okay, the earliest people, आदि मानव कौन था? Hunter-gatherers. Hunter-gatherers means जो hunting भी करते थे और food gather भी करते थे. So they were hunter-gatherers. Then we come to know that they used to get food by hunting animals, catching fish and birds, gathering fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. जो भी उनको नेचर में चीजें मिलती थी, they used to live on that. That is their food. Okay, the plant produce was one of the important source of food. Now, when they live in jungle, they used to get food from plants, various plants, and also by hunting various animals. So they depend on hunting as well as gathering food. That is why they got the name hunter gatherers. Are you able to get me? मुझे आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, okay. Now you can see in the picture also they are hunting animals, they are carrying the animals, and they are also gathering food from the plants. What did they used to eat? Like they used to collect seeds, leaves, fruits, vegetables, roots. Okay, so such type of food they used to collect and they used to gathering food was very difficult task for them. Now in the beginning only we have read about this. Why it was a difficult task? Because they used to live in forest. Several animals run faster and were stronger than human beings. Now they depend on hunting also, they depend on gathering also. Now, when they started hunting animals, they found that few animals, they run faster than them. And they were very stronger than human beings. So when they try to hunt them, these animals, they used to attack on them. So it was very difficult for them to hunt them. Now people need to be alert, quick and have presence of mind for hunting animals and for gathering food also. Because when they roam around in the jungle, जब वो जंगलों में इधर उधर घूमते थे तो एनिमल्स जो थे उन पर अटैक कर सकते थे और उनको भी खा सकते थे, उनको मार सकते थे.
तो दे नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट व्हाइल रोमिंग इन द जंगल। इसलिए जब उनको फूड की जरूरत होती, चाहे वो हंटिंग करनी हो चाहे गैदरिंग करनी हो, दे नीड टू बी वेरी अलर्ट, दे नीड टू बी वेरी क्विक एंड दे हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। किस समय कौन सा काम करना है और किस तरीके से रिएक्ट करना है, इसके लिए उनका दिमाग चलते रहना चाहिए था। Now, third point is difficult to recognize the plants produce or the part of plants whether they were edible or not. Edible means which can be eaten. तो अब क्या हुआ, जंगलों में वो फूड भी गैदर करते थे, दे वर नॉट नोन अबाउट एनीथिंग, दे वर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द प्लांट्स एंड द प्लांट्स प्रोड्यूस। उनको ये नहीं पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा पेड़ अच्छा है कौन सा जहरीला है। सो दे वर नॉट नोइंग दिस, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू रिकॉग्नाइज द प्लांट्स कि कौन से प्लांट्स को खाना है। तो ऐसे में क्या होता था कि इफ दे आर कलेक्टिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, some of the plants were very poisonous, तो उस poisonous plant को खाने से या उसके प्रोड्यूस को खाने से वो कई बार मर भी जाते थे। तो इनके लिए बहुत जरूरी था कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करे। एक के साथ ऐसा हो गया तो दूसरा उसके बारे में सोच पाए कि क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी है। तो इस तरीके से दे यूज टू मेक ग्रुप्स एंड दे यूज टू हंट एनिमल्स सो दैट इट विल बी इजी फॉर देम टू हंट द एनिमल्स। ओके, तो गैदरिंग फूड इसलिए बड़ा डिफिकल्ट था, चाहे वो हंटिंग के रूप में हो, हंट करके भी जब एनिमल्स लाते थे इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि एनिमल्स उनको अटैक कर सकते थे और वो उनसे तेज भी दौड़ते थे, जितनी स्पीड इसमें नहीं थी, बिकॉज दैट टाइम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स वर नॉट डेवलप्ड एट ऑल। उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे डेवलप नहीं थे, या कोई ऐसी प्रोटेक्टिंग शील्ड नहीं थी उनके पास कि वो अपने आप को एनिमल्स से बचा पाए। ऐसा क्यों हो सकता था, एनिमल से वो क्यों नहीं अपने आप को बचा पाते थे? एनीबडी अनम्यूट योरसेल्फ, क्यों नहीं बचा पाते होंगे, क्या कारण रहा होगा? एक्सेप्ट देन दिस कि दे कुड नॉट रन फास्टर देन एनिमल्स। इसके अलावा कोई और? Ma'am, Yes, who is this? ma'am, because they does not have knowledge. मैम One at a time. उनके हथियार ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे। दिव्य बोल रहा है। ज्यादा Ma'am, मैम तन्मय मैम उनके मैम, पास मनस्व। नॉलेज नहीं थी तब। हाँ, ma'am, उनके पास knowledge नहीं थी। मैम मैम- नॉलेज नहीं थी। ओके, सारे अनम्यूट नहीं करेंगे, वन बाय वन। वेदांश ने बोला कि उनके पास नॉलेज नहीं थी, और दिव्य? मैम तन्मय हाँ, तन्मय। यस बेटा। मैम उनके पास वेपन्स नहीं थे। Yes, very good. They were not having weapons. Yes, very good. Next, any other point? मैम धवल हाँ धवल। मैम वो एक दूसरे से मैम एक दूसरे से वो कांटेक्ट नहीं कर पाते थे कि फ्रेंड नहीं बना पाते थे। Yes, very good. They were not able to communicate with each other because they were not ठीक से बोल नहीं पाते थे। one by one. I told you earlier also, one by one. If somebody has unmuted, please don't unmute other person. Wait for your chance. Okay. Any other point? Ma'am, Yes. मैम प्रणव ma'am, क्योंकि वो टीम स्पिरिट में काम नहीं करते थे। यस, टीम स्पिरिट में काम नहीं करते थे, क्योंकि सब सिंगल सिंगल रहते थे, और अगर जब वो ग्रुप्स में रहने लगे तब उनको ये समझ में आया कि नाउ वी कैन डू हंटिंग इजीली। यस, वेरी गुड। एनी अदर पॉइंट? जानवी, चेरी? क्या कर रहे हैं? मैम बनस्व साहब यस मनस्व। मैम उनको पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे। ओके, यस मनस्व। मैम वो जिस जानवर का शिकार करने जाते थे वो खतरनाक होगा। सकता था, हाँ, उनको ये पता नहीं था कि इसका शिकार किया जाना चाहिए। कौन सा जानवर खतरनाक है कौन सा खतरनाक नहीं है। वेरी गुड। आई होप। यस, मैम, और एक और बात, मैम मैम पहले और भी खतरनाक जानवर होते थे मैम, जो अभी इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, तो मैम उसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं थी। मैम मैम यस बेटा। मैम उन्हें ये नहीं पता था उन्हें पकड़ने का। हाँ, ठीक है, मैम, वेरी गुड। हाँ मैम उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। हाँ, कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज दे वर इलिटरेट, नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं थी, बस वो जो ऑब्जर्व करते थे
उनका मेन पार्ट क्या था? ऑब्जर्वेशन. थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली they could make out whether we have to hunt this animal or not. ऑब्जर्वेशन उनका गलत भी हो सकता था. धीरे धीरे उन्होंने इन सब चीजों को लर्न किया by observing, by experiencing all the things. क्योंकि अनुभव हमारा सबसे बड़ा टीचर होता है. एक बार हमको जब अनुभव मिल जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन सी चीज करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या हमारे फेवर में होगा. ओके, सो वेरी गुड. नाउ आई एम. हाँ, यस मैम उनके वेपन ज्यादा अच्छे नहीं थे. हाँ, ज्यादा अच्छे इसलिए नहीं थे बिकॉज दे वर नॉट नोइंग द ट्रिक्स, और यू कैन से देयर टूल्स वर मेड अप ऑफ आयरन, okay, or bones which were not very efficient or good for hunting animals. Okay, इसलिए उनको मैम वो पहले पत्थरों से वो बनाते थे. पत्थर. मैम एक और बात थी मैम, Yes. अगर किसी को मिल भी जाता था ना तो मैम वो लड़ाई करते थे कि ये मैं लूंगा. हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उनकी यूनिटी नहीं थी बेटा. ओके, यूनिटी. मैम वो टीम वर्क इसलिए नहीं करते थे ताकि वो अकेले ही सब कुछ ले सकें. हाँ, ऐसा भी है क्योंकि नॉलेज नहीं था उनको कि हम क्या करेंगे तो क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, तो ये सब चीजें उनको पता नहीं थी. वेरी गुड, गुड. नेक्स्ट स्लाइड. आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. नाउ जैसा कि आपने लेसन का नाम देखा, the earliest people. Now they used to move from one place to another always. Why hunter gatherers moved? Why they were moving from one place to another? They keep on moving from one place to another for various reasons. Now there are few reasons. See, resources were not available for a longer period. ठीक है, जो वहां पे जिस एरिया में वो जिस जंगल में रहते थे वहां पे उनके लिए जो साधन थे, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ट्रीज हो, वो क्या लिमिटेड होते थे. बहुत लंबे टाइम तक वहां रहने के बाद वो सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते थे और वो अवेलेबल नहीं होने की वजह से दे यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट प्लेस फॉर गेटिंग दोज थिंग्स. नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू हंट एनिमल्स. दे फॉलोड एनिमल्स for hunting animals because they know that I have to hunt animals. So when they used to decide कि हमको इस एनिमल को हंट करना है, इसका शिकार करना है, तो उस एनिमल को फॉलो करते करते वो दूर तक चले जाते थे और इसलिए वो मूव करते थे. जहां जहां एनिमल्स जाते थे वो वहां वहां उनके पीछे जाकर रहने लगते थे क्योंकि उनको एनिमल्स इजीली मिल जाते थे. दे नीड नॉट टू वर्क हार्ड फॉर सर्चिंग दोज एनिमल्स टू हंट देम. ओके, तो इसलिए हंट करने के लिए एनिमल्स को वो उनको ही फॉलो करते थे और जहां जहां एनिमल्स की मूवमेंट होती थी दे आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. दिस इज ड्यू टू चेंज इन सीजन्स. नाउ व्हेन अर्ली men started living settled life, he observed the seasons also. उसने देखा कि कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है. तो इन चेंज ऑफ सीजन्स में उसने एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की. बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट. दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट. द थिंग इज दैट ओनली वी डोंट ट्राई इट. ठीक है, हम उनको ट्राई नहीं करते. अदरवाइज हमसे इंटेलिजेंट कोई भी चीज नहीं है, कोई एनिमल, कोई प्राणी नहीं है, कोई लिविंग बींग नहीं है. तो अर्ली मैन ने क्या देखा कि जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग चीजें उगती हैं. कोई किसी सीजन में आती है, कोई किसी सीजन में आती है. कोई एनिमल किसी सीजन में बाहर आता है, कोई एनिमल किसी और सीजन में आता है. सो बाय एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स, बाय ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स, दे कम टू नो व्हेन टू मूव, वेयर टू मूव. कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसके हिसाब से उन्होंने मूवमेंट शुरू किया चेंज ऑफ सीजन्स की वजह से. अगर मान लीजिए कि एक जगह पे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो दे स्टार्टेड मूविंग टू सम अदर प्लेस और उनको लगा कि अरे यहाँ तो सीजन थोड़ा सा गर्म है, वी कैन सर्वाइव इजीली हियर, एंड सो दे स्टार्टेड लिविंग इन दैट प्लेस ऑल्सो. सो दिस वे दे चेंज्ड their places according to the change in seasons. Okay. Now the next point is in search of water during the dry season. बारिश के सीजन में उनको पानी की कमी नहीं होती थी. They get water resources easily. Even in winter seasons, their our body need less of water.
ठीक है, बट अगर हम समर की बात करते हैं तो वी फाइंड दैट वी हैव एक्सपीरियंस दैट कि हमको बार बार प्यास लगती है, वी फील थर्स्टी। तो ऐसे में क्या होता था कि वो वाटर की तलाश में, वाटर की सर्च में, इन सर्च ऑफ वाटर दे यूज्ड टू कीप ऑन मूव, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। फूड के बिना हम कुछ दिन तक रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। सो इन ड्राई सीजन मतलब जब एक्सट्रीम में गर्मियां होती हैं, जब पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब वाटर सोर्सेज भी सूख जाते हैं। उस समय में वो वाटर के लिए इधर से उधर जाना पसंद करते थे, सो दैट दे वुड गेट वाटर इजिली। ठीक है, और पानी के बिना वो मरे नहीं। The next point is in search of good quality of stones for making tools. ये भी एक मेन रीजन था। क्या रीजन था? कि उनको अच्छी क्वालिटी की स्टोन्स चाहिए। जैसे जैसे आदि मानव ने अपने हथियारों को बनाना शुरू किया और हंटिंग शुरू की उन स्टोन टूल से, तो उसने ये पाया कि अगर स्टोन के टूल्स अच्छे होते हैं तो दे कुड इजिली हंट द एनिमल, दे कुड इजिली किल द एनिमल्स। ओके, तो उन्होंने क्या किया, पहले जब उनकी अगर हम स्टोन टूल्स देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। अर्लियर व्हेन दे मेड स्टोन टूल्स दे वर वेरी ब्लंट, दे वर नॉट शार्प, दे वर वेरी हैवी। बड़े बड़े स्टोन टूल्स को वो उठा उठा के फेंकते थे, पत्थरों को ही उठा के फेंकते थे, वो शार्प भी नहीं होते थे और उसको फेंकने में उनको ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ती थी। जैसे जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया, दे स्टार्टेड मेकिंग स्मॉलर स्टोन टूल्स, छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स बनाना उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसको वो इजीली हिट कर पा रहे हैं। बट उसके अलावा एक और रीजन उनको समझ में आया कि अगर स्टोन टूल्स शार्प होंगे तो दे कुड इजिली हंट द एनिमल्स। तो उन्होंने अपने छोटे छोटे टूल्स को क्या किया, शार्पन किया। छोटे छोटे टूल्स को शार्प करने की वजह से उन्होंने पाया कि जब वो हिट करते थे, किसी एनिमल को मारते थे, तो वो एनिमल जल्दी घायल हो जाता था। और इस तरीके से उन्होंने शार्प और अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स को पाने के लिए जगह जगह घूमना शुरू किया, सो दैट दे कुड गेट गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स फॉर। मैम डाउट। यस बेटा, यस। मैम मैम जो उनके टूल्स थे मैम वो उनको कैसे शार्प करते थे? शार्प करते थे, हाँ, वो शार्प करते थे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ तोड़ कर। ठीक है, जैसे हमने हथौड़ी छेने का काम देखा है, चिजल देखा आपने, छेनी हथौड़ा देखा, हैमर और चिजल को देखा आपने कभी पत्थरों पे मजदूरों को? यस मैम। दे यूज्ड टू कीप चिजल ऑन द स्टोन एंड दे यूज्ड टू हिट विद द हेल्प ऑफ द हैमर। तो ऐसे ही वो पत्थरों पे आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ डिड दे मेक देयर टूल्स। ओके, तो छेनी हथौड़े का काम करके या फिर एक पत्थर से दूसरे पत्थर को हिट करके वो अपने स्टोन टूल्स बनाते थे। और ये उन्होंने लेटर स्टेजेस में सीखा। अर्लियर दे वर नॉट नोइंग दिस टेक्निक, पहले उनको ये टेक्निक नहीं पता थी। बाद में धीरे धीरे उनको जब ये टेक्निक समझ में आई कि मैं ऐसा करूंगा या हम ऐसा करेंगे तो ये टूल्स ज्यादा बेटर बनेंगे, देन दे started doing that also. By learning and by experiencing all these things, they started making good quality of stone tools. Okay. Now, only one beta. Yes. Virat is asking. Yes beta. Yes. Speak out. बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर, नॉट ऑडिबल, क्योंकि किसी और का भी माइक ओपन है। देखो मैम प्रणव इज टेलिंग। हाँ प्रणव, प्रणव यस यस, जैसा हमने शुरू में देखा था कि आदि मानव जैसे बड़े एनिमल को अगर मारने की कोशिश की, वो उसको अटैक भी कर सकता था। तो धीरे धीरे उन्होंने ये टेक्निक्स भी सीखी कि बड़े एनिमल्स को हम किस प्रकार से मार सकते हैं। तब उन्होंने ग्रुप्स फॉर्म किए होंगे और तब शायद जाके उन्होंने बड़े बड़े एनिमल्स को हंट किया होगा और तब कबीले या ग्रुप्स में रहना उन्होंने शुरू किया होगा। ठीक है, क्योंकि अकेले वो बड़े एनिमल्स को हंट करके नहीं ले जा सकते थे, वो एनिमल डेंजरस भी हो सकता था, वो एनिमल उनको अटैक करके मार भी सकता था। इसलिए उन्होंने
पहले ग्रुप्स फॉर्म किए होंगे, ये सब सीखा उन्होंने। When they experienced all those things, they started doing accordingly. वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया, चेंज किया, और तब उन्होंने उस काम को किया। क्योंकि मैंने अब भी कहा कि ह्यूमन बींग्स आर born intelligent, they are very very intelligent। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो उनके जंगल से रिलेटेड था। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द नीड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आज भी हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलने के लिए उनकी प्लेसेस पे जाते हैं। लाइक अभी तो हम मुश्किल में पड़े हुए थे लॉकडाउन में, लेकिन आप देखोगे कि समर ब्रेक या कोई विंटर ब्रेक या दिवाली ब्रेक होता है तो हम सभी अपने अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के घरों पे जाते हैं, दूर दूर विजिट करने जाते हैं। सेम वे एनिमल, ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मिलने के लिए अर्ली मैन भी जाया करता था। कभी कभी कुछ एक स्थितियों में जब उनके फैमिली या फ्रेंड्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, बट वो नहीं मूव करते थे, तो जब कभी उनको अच्छा लगता था या याद आती थी तो दे स्टार्टेड visiting their friends and relatives also, and for that purpose also they used to move from one place to another. So 6 reasons are there. See, let us recap it. Resources were not available for a longer period. Plants भी हो सकते हैं, fruits भी हो सकते हैं, vegetables भी हो सकते हैं, animals भी हो सकते हैं. Then they used to follow animals also to hunt them. Because of change in seasons and because of natural disasters, also they used to move from one place to another. In search of sources of water also, in summer season they keep on moving. In search of stones also for making tools, they keep on moving. To meet their friends and relatives also, they used to move sometimes. Okay. Now, how do we know about these people? Now, in the first chapter, we have read something about it. Do you remember what we read in the first chapter, what we studied? Anyone? Ma'am, manuscripts. Manuscripts, okay. What else? Cherry? Are you there, beta? How do we come to know about these people? किसी को भी याद हो तो वन बाय वन, क्योंकि आपको दिख रहा है किसने म्यूट किया, किसने अनम्यूट किया। अगर किसी एक ने अनम्यूट किया है तो दूसरा अनम्यूट। Manuscripts. Other than this, और क्या चीज थी जिससे उनके tools and clothes. Very good. Evidences of hunter-gatherers found from the sites of Bhimbetka. हमने देखा कि उनके जो टूल्स थे वो कहीं कहीं मिले। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कुछ एविडेंस मिले जिससे हमको ये पता चला कि कहाँ कौन रहते थे और वो क्या क्या करते थे। हमने कोई फिल्म नहीं बनाई है, हमने कोई इमेजिनेशन नहीं किया, बट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस वी came to know about all those things which early man was doing. मैम उनके बोन्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैम वो उनके बोन्स वैसे ही खराब हो जाते हैं। अच्छा, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो गए थे। ओके, फिर भी बोन सर्वाइव करते हैं बेटा, ठीक है, बोन सर्वाइव करते हैं। बोन्स वी गॉट, दैट इज व्हाई we have so many evidences. Even we have these tools also, the things which they were using that time, that we got. The archaeologists, they found such things. These were the means you can say the sources. हमने फर्स्ट चैप्टर में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है। तो एविडेंसेस हंटर गैदरर्स को मिले, कहाँ कहाँ मिले, उसमें आपको एक मैप बना के फर्स्ट चैप्टर में दिखाया था मैंने कि मैप में दिया हुआ है कौन कौन सी साइट्स है। इसमें जो बहुत ही अच्छी साइट्स है, इसमें देखो एक भीमबेटका साइट्स है। भीमबेटका साइट इज लोकेटेड इन आवर स्टेट मध्य प्रदेश, MP. Then one site is located in Hunski, that is Karnataka, and the other one is Karnool Caves, which is located in present Andhra Pradesh. ओके, तो इन साइट्स पे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे हंटर गैदरर्स के बारे में पता चलता है कि वो कैसे रहते थे, क्या यूज करते थे। तो ऐसी बहुत भीमबेटका साइट्स पे तो आज भी आपको उनके जो केव्स है, नेचुरल केव्स, यू विल गेट दोज नेचुरल केव्स। अगर आपको कभी टाइम मिले, कभी जाना हो तो जरूर विजिट करना इन केव्स को और इन जगहों को।
ठीक है. Then the other thing is evidences of hunter gatherers are also found in the places which were located near the banks of rivers and lakes. Now if you remember in the first chapter we have read this also, that in the beginning they started living near the sources of water. जहाँ पे पानी easily available हो जाता था, ऐसे वाटर सोर्सेस के पास ही आदि मानव ने रहना शुरू किया. और आज भी अगर आप अपनी लोकेशंस को देखने की कोशिश करोगे तो you will find all the important cities or states or the villages, they are situated near the banks of rivers or the water sources nearby. ठीक है. अगर आसपास वाटर सोर्सेस नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव आवर लाइफ. तो हम देखेंगे कि कोई भी बिग सिटी या इम्पोर्टेंट सिटी आप जब उठा के देखोगे तो देखोगे कि सब के सब वाटर सोर्सेस पे हैं. वो कहाँ पे हैं? ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर्स, लेक्स. ठीक है. ऐसी जगह पे आप मुंबई को देखो, सी शोर पे है, कोस्टल रीजन्स देखो, सारे पानी के पास है. अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो आप देखो हमारे पास पार्वती रिवर है. अगर आप उज्जैन की बात करते हो तो देखते हो कि शिप्रा रिवर है. तो इस तरीके से आप देखोगे वाराणसी, कानपुर, ये सारी चीजें गंगा रिवर के पास है. पटना शहर गंगा रिवर के पास है. तो इतनी सारी, हर एक important city आप देखोगे कि these all are located near the banks of rivers. Why? The reason was only one, that we cannot survive without water. So that early men also, they were also not able to survive without water. ऐसा नहीं था कि वो कुछ अलग थे कि पानी नहीं भी मिलेगा तो कई दिन तक भी जिंदा रहेंगे. ठीक है. तो हमें जो सोर्सेज मिले, हमने जो हिस्ट्री के सोर्सेज देखे, पता चला कि हंटर गैदरर्स कहाँ कहाँ पे रहते थे और वहां पे रहकर वो क्या क्या करते थे. ये देखो आप कुछ सीन हम देख सकते हैं. हंटर गैदरर्स इस प्रकार से भी रहते थे. ठीक है. तो पास पास में रिवर सोर्सेस के पास में, वाटर सोर्सेस के पास रहते थे, सो दैट दे विल गेट ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ द वाटर. दे कैन डू फिशिंग आल्सो, दे मूव थ्रू वाटर आल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. जब अर्ली मैन ने एक जगह से दूसरी जगह जाने की शुरुआत की थी तो उसने इस वाटर में पानी के तने को, पेड़ के तने को, लॉग को तैरते हुए देखा था. ठीक है. जो तना होता है पेड़ का मोटा सा, उसको पानी में तैरते हुए देखा था. और तब उसके दिमाग में आया कि कहीं मैं तने पे बैठ जाऊं तो क्या मैं भी तैर सकता हूं. एंड ही डिड दैट. उसने वो ट्राई किया और उसने देखा कि यस, ही वाज सक्सेसफुल. वो उस लॉग पे बैठ के तैरने लग गया. उसने उसको कंफर्टेबल बनाया और उसने कई सारे लॉग्स को जोड़ दिया आपस में और एक फ्लैट सरफेस तैयार किया जिसपे वो आराम से बैठ सकता था. गिरने का डर कम था क्योंकि पानी की लहरों में वो गिर भी सकता था. धीरे धीरे उसने उस लॉग को गड्ढा करके एक बोट का शेप देने का भी वो कोशिश किया. और जब उसने ये किया तो उसने देखा कि वो सबसे सेफेस्ट थी. जो उसकी वो इन्वेंशन थी वो सबसे सेफेस्ट थी कि लॉग में एक छेद सा कर दिया उसने और उसको बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाकर उसने इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया. तो पहले उसने वाटर वेज से ही शुरू किया था जाना, एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर. अगर जब उसने वाटर सोर्सेस के पास शुरू किया था रहना तो उसने पानी के जो वाटर मीन्स थे वो सबसे पहले शुरू किए थे. ठीक है. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. अब इससे पहले क्वेश्चन था ना कि उनको कहाँ कहाँ रहना, वो कैसे स्टोन टूल्स बनाते थे, क्या करते थे. अब क्या हुआ, हमने बिगिनिंग में पढ़ा कि वो क्यों मूव करते थे, फॉर गेटिंग गुड क्वालिटी स्टोन्स. नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. अभी हमने देखा इससे पहले वाली प्रीवियस स्लाइड में कि दे स्टार्टेड लिविंग देयर लाइफ नियर द वाटर सोर्सेज. वाटर सोर्सेज के साथ साथ उन्होंने क्या किया, दे चोज टू लिव इन नेचुरल केव्स ऑल्सो. वाटर सोर्सेस के पास होते हुए भी उसके हिसाब से वो क्या करते थे, क्योंकि उनको घर बनाना नहीं आता था, दे वर नॉट डूइंग द टेक्निक ऑफ मेकिंग हाउसेस, सो दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, नेचुरल केव्स. ठीक है. एनिमल्स की केव्स में रह जाते थे, उसमें कैसे भी ग्रुप्स में रहते थे. कई बार एनिमल उन पे अटैक भी करते थे जिनकी केव्स होती थी. तो धीरे धीरे उन्होंने केव्स में रहना शुरू किया और बहुत सारी साइट्स में ये नेचुरल केव्स आज भी अवेलेबल हैं जहाँ पे अर्ली मैन रहते थे, क्योंकि उनके कुछ सोर्सेस, कुछ एविडेंसेस मिलते हैं वहां पे कि यहाँ पे अर्ली मैन रहा करते थे. नाउ पीपल ट्राई टू. हाँ यस बेटा, यस मैम
केव्स नेचुरली मेड रहती थी कि मैम वो लोग खोद खोद के बनाते थे? नहीं बेटा, वो नेचुरल केव्स में, इनिशियली उन्होंने नेचुरल केव्स में ही रहना शुरू किया था, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज नहीं था और इतने बड़े घर बनाने की चीज उनको पता नहीं थी। क्योंकि अगर हम और भी बिगिनिंग में जहाँ जब अर्ली मैन के बारे में हम देख पाते हैं, तो हम देखते हैं कि अदर दे यूज टू लिव ऑन ट्रीज, जंगलों में वो पेड़ों पर रहते थे, रात वो पेड़ों पर बिताते थे, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पे उनको थोड़ा सा ऊपर से छाया जैसा मिल जाए कहीं पे, कि वो रह सके। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करके नेचुरल केस में रहना ज्यादा बेनिफिशियल समझा, ज्यादा उनको ये सिक्योर्ड लगा सेफ्टी व्यू पॉइंट से, तो उन्होंने नेचुरल केस में रहना शुरू भी किया। ठीक है, और बहुत लेटर स्टेजेस में उन्होंने घर बनाना शुरू किया। उन्होंने बहुत जल्दी घर नहीं बनाए थे, पहले वो नेचुरल केव्स में ही रहते थे। ठीक है, तो केव्स में रहते थे, ट्रीज पे रहते थे, या कुछ पत्थरों के नीचे जो गैप रहते हैं वहां पे रहा करते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट किया एंड दे स्टार्टेड मेकिंग देयर हाउसेस। ओके, then people tried to find places where good quality stones were available, that's why they moved। ठीक है, उनको जहाँ पे पत्थर पड़े मिलते थे, पत्थरों के पहाड़ दिखते थे, और उनको लगता था कि ये पत्थर अच्छे हैं, हमारे स्टोन टूल्स अच्छे से बन पाएंगे, तो वो उस जगह रहते थे। अगर लगता था कुछ दिन रहने के बाद कि नहीं ये पत्थर अच्छे नहीं है, तो दे स्टार्टेड मूविंग अगेन। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसी साइट्स को चुना। अब ऐसी साइट्स में दो तरीके की साइट्स थी, एक कहलाई फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट का मतलब है कि वहां वो रह नहीं सकते थे, फॉर वर्किंग ओनली दे यूज टू कम टू दैट प्लेस। कहाँ पे? फैक्ट्री साइट्स पे, वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड टूल्स वर मेड। वहां वो दिन भर पत्थरों को तोड़ते और अपने नए नए टूल्स बनाते थे, पर वहां उनके रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं होता था जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए रेन में, हीट में, ठीक है, या एनिमल से। तो इसलिए वो सिर्फ उस जगह पे केवल काम करने के लिए जाते थे। जैसे आज के समय में हम देखते हैं ऑफिसेज हैं, ओके, तो पापा ऑफिस जाते हैं, आपकी मम्मा अगर वर्किंग है, मम्मा यूज टू गो टू ऑफिस, घर पे तो नहीं रहते थे। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन सब हो गया, सो वी ऑल आर एट होम। लेकिन अगर हम देखें तो पाए कि सभी अपने अपने ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, और वहां वो रहते नहीं है, वहां सिर्फ काम के लिए जाते हैं। देर आर सो मेनी फैक्ट्रीज वेयर पीपल यूज टू गो टू वर्क ओनली, फिर शाम को वो अपने घर आते हैं। तो अर्ली मैन भी क्या करता था, बहुत सारे लोग मिलके उन पहाड़ों पर जाते थे जहाँ पे पत्थर इजीली मिलते थे, सो दैट दे कुड मेक देयर टूल्स। और शाम होने के बाद या जब उनका मन होता था तो वापस भी घर आते थे। इसके अलावा एक और था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, ऐसी भी प्लेसेस थी जहाँ पे हैबिटेशन भी था। हैबिटेशन का मतलब होता है दे यूज टू लिव देयर एंड दे यूज टू वर्क देयर। वहां पे उनको पत्थर भी मिलते थे और वहां केव्स भी थे। तो वो उन जगहों को जहाँ पे उनका काम भी हो जाता था और रहने की भी जगह थी, उनको बोला जाता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। ऐसी जगह पे जहां उनको अच्छे से पत्थर भी मिल जाते थे और केव्स भी मिल जाती थी या शेल्टर भी मिल जाता था, वहां पे उन्होंने बहुत लंबा टाइम बिताया। दे स्पेंट लॉट ऑफ टाइम देयर, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देयर, बिकॉज दे वर हैविंग वर्क ऑल्सो, दे वर हैविंग शेल्टर ऑल्सो। सो पीपल लिव्ड हियर फॉर longer spells of time and also they made stone tools। तो इसको बोला जाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। और जहाँ पे अकेले रहते थे, वहां कोई फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं करते थे, उसको केवल हैबिटेशन का नाम भी दिया जाता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि हैबिटेशन मीन्स जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सो here you can see that people are working also and nearby they have shelter also in natural caves, so they used to live there, they used to work there. So such type of sites were known as habitation cum factory sites. Now somebody asked me how they were making stone tools. Now these were the two methods used by the, are you able to understand better? वेदांश आंसर में, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, यस मैम। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। जानवी समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। प्रणव, धवल, are you able to understand?
ओके बेटा, जहां डाउट होगा ना तो आप लिख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग डाउट, आई एम सो एंड सो एंड आई एम हैविंग डाउट। ओके, तो ये और एक मैं एक स्लाइड और ये कंप्लीट कर रही हूँ, मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। रेस्ट ऑफ दी स्लाइड्स वी विल बी कंप्लीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, making stone tools. Now they were using two types of methods. Okay, stone on stone methods, and the second one was pressure flaking method. These were the two methods. अब stone on stone method क्या था? जैसा कि मैंने बताया था, the pebble from which the tool was to be made was held in one hand. ये एक पत्थर वो अपने हाथ में पकड़ लेते थे। And second stone was used to strike a flakes. ठीक है, एक को हाथ में पकड़ते थे और उससे दूसरे को मारते थे। तो यहाँ पे वो उनको जैसा शेप साइज चाहिए वैसा वो मार मार के उसको हिट करके उसको तोड़ा करते थे। इसमें पूरा पत्थर भी टूट जाता था, फिर वो नए सिरे से बनाते थे, फिर वो फिर ट्राई करते थे। तो जब तक उनको अपने अकॉर्डिंग शेप और साइज नहीं मिल जाता थे, दे कीप ऑन डूइंग दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या करते थे, एक को होल्ड करते थे और दूसरे को रखकर उस पर हिट करते थे, ऐसे मारते थे। ठीक है, तो ये कहलाता था स्टोन ऑन स्टोन मेथड, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर उसके टूल बनाना। ठीक है, सेकेंड वन वाज प्रेशर फ्लेकिंग। ये मेथड आज के जमाने जैसा मेथड है, ओनली द थिंग्स वर डिफरेंट। ओके, आज जो हम चिजल और हैमर की मदद से किसी भी स्टोन को शेप करते हैं, वो मेथड आदि मानव या अर्ली मैन भी यूज करता था। देखो, उन्होंने ये बोन्स को हैमर की तरह यूज किया हुआ था। दिस कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस। जिस पत्थर का टूल बनाना था उसको एक हार्ड सरफेस पे रख देते थे, नीचे एक हार्ड सरफेस पे इसको रख देते थे वो। और उसके बाद ये क्या करते थे कि हैमर को, कोई भी हैमर को स्टोन के रूप में ले लेते थे, या फिर हैमर बोन भी हो सकता था, किसी चीज को भी यूज करके जो भी जिससे भी उनको इजी लगता था, दे यूज टू हिट द स्टोन विच इज केप्ट ऑन दी हार्ड सरफेस। नीचे अगर हार्ड सरफेस है उस पर रखकर वो बड़े आराम से उसको हिट करते थे, और तब वो उसको बड़े आराम से मारकर अपने अकॉर्डिंग शेप बना लेते थे जो उनको शेप चाहिए था। तो दीज टू मेथड्स वर यूज्ड बाय अर्ली मेन फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स। और कुछ टूल्स उनको वैसे ही मिल जाते थे, जैसे हम भी आजकल स्टोन टूल्स नहीं, लेकिन हम पत्थर इकट्ठा करते हैं। दोज हु वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स और द पीपल दे आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टोन्स। हम में से कईयों की ऐसी हैबिट्स होती है, हॉबीज होती हैं कि हम पत्थर इकट्ठा करते हैं तरह तरह के, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग कलर्स के, है ना। तो हमको भी, आदि मानव भी उस प्रकार के कुछ शेप के जो नॉर्मली बने रहते थे, जो नेचुरली डिजाइंड थे, ऐसे स्टोन टूल्स भी इकट्ठे किया करता था, जिससे उसको लगता था कि हाँ, ये इसमें मुझे कोई काम नहीं करना या फिर थोड़ा बहुत काम करना है और स्टोन टूल प्रिपेयर हो जाएगा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? मैम, यस बेटा, हु इज स्पीकिंग? मैम मनस्वी साहू। यस बेटा। मैम, जो अर्ली मैन थे वो आजकल के लोगों से ज्यादा बड़े और ताकतवर थे क्या? हाँ बेटा, वो हमसे बड़े थे, साइज शेप उनका बड़ा था और स्ट्रांग भी थे, क्योंकि उनका काम जो था, जो नेचर ऑफ वर्क था, वो वैसा ही था। मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करती हूँ बेटा, ठीक है? मैं वापस आ रही हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कशन करती हूँ 2-4 मिनट। Can you see me now? Am I able? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Your question please. आपका क्या क्वेश्चन था? मनस से पूछ रहा था ना? Yes, ma'am. हाँ, क्या क्वेश्चन था बेटा? मैम, जो अर्ली मैन थे वो अपन से बड़े और ताकतवर थे क्या? हाँ, हमसे बड़े। जैसे जैसे हमारे बॉडी का यूज करते हैं हम, उस प्रकार से हमारी बॉडी का डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है। ठीक है, उस समय उनके पास ताकत चाहिए थी, उनको एनिमल से लड़ाई करने के लिए, उनको रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो उसी प्रकार से उनकी बॉडी का बिल्टअप था, क्योंकि वो थे। यस वेदांश। पहले के लोग बहुत मैम लंबे लंबे होते थे मैम, 8 फीट तक। बहुत लंबे लंबे होते थे। मैम,
मैम उनकी उम्र अपने आज के जितने लोगों की जितनी रहती थी या लंबी लंबी रहती थी? क्या चीज? मैम उम्र, एज। उम्र, एज तो ज्यादा लंबी रहती थी क्योंकि उनका मैम पहले स्ट्रेस बच्चे नहीं, ज्यादा। उनके पास स्ट्रेस लेवल कम होता था। आज आपके पास बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। जैसे जैसे हम टेंशन में आने लगे वैसे वैसे हमारा मैम जो जैसे अभी कोरोना आ गया। हमारी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है। लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा खाने पीने का जो तरीका है, वो सारी चीजें है ना। उस समय आप अर्ली मैन को अगर पिक्चर देखते हो तो आप देखते हो दानव जैसा है, राक्षस जैसा, उसके नेल्स बड़े बड़े हैं, उसके दांत बड़े बड़े हैं, ठीक है। बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन दैट ओनली। उनको नाखूनों का इस्तेमाल करके स्किन को निकालना पड़ता था या स्क्रैप करना पड़ता था, प्लांट्स एनिमल्स के स्किन को निकालना पड़ता था। तो उनके नेल्स भी बड़े स्ट्रांग और बड़े होते थे और उनके टीथ भी ऐसे ही होते थे। बट आज आप सोचो कि आप अपने नाखूनों से काम करो तो आपके नाखूनों में दर्द होने लगता है क्योंकि आप यूज टू नहीं हो उसके लिए, है ना। तो आप हमेशा ट्रिम मैम करते हो, ट्रिम नहीं करोगे ना तो आप देखोगे कुछ समय के बाद आपके नाखून टूटना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैम जब ऐसे खींचते हैं ना मैम, हाँ जैसे लंबे नाखून रहते हैं तो मैम ऐसे खींचते हैं तो बहुत दर्द होता है। दर्द होता है, हाँ, क्योंकि वो स्ट्रांग अब उतने नहीं है जितने होने चाहिए। यस दिव्य, एनी क्वेश्चन? मैम मैम लेकिन पहले तो वो पता है ओनली नॉन वेज खाते थे मैम, लेकिन उधर पेड़ पे और फ्रूट जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, आपने देखा, हंटर गैदरर्स। फर्स्ट चैप्टर में भी जब आप एक बार खोल के देखोगे तो आप पाओगे कि वो हंटर गैदरर्स ही कहलाए। अर्ली मैन जो थे वो हंटर गैदरर्स थे क्योंकि वो हंटिंग करके खाते थे, तो गैदरिंग भी करते थे क्योंकि ऑल टाइम दे वर नॉट एबल टू गेट एनिमल्स टू हंट देम। पूरे टाइम उनके आसपास एनिमल्स थोड़ी ना थे, दे यूज टू सर्च फॉर देम। उनको सर्च करना पड़ता था वो एनिमल कहाँ है जिनको वो करना चाहेगा। यस पुलकित, आई नो दैट टाइम इज अप। Okay, so later on we'll discuss all the things on Saturday. Continue with the same chapter. Go through the chapter and clear your doubts. Okay. Now you may leave the class. Let us do Shanti part first of all, and we'll be leaving. Okay. Join your hands, beta. Yes. Start. Om Shanti Shanti Shanti. Saira, you may leave the class. थैंक यू मैम।